राजस्थान में सीएम को लेकर चल रहे चर्चाओं को विराम लग गए, जहां लोगों के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि वहां का सीएम सीपी जोशी बनेंगे या वसुंधरा राजे या गजेंद्र शेखावत या अनीता बघेल या जोगेश्वर गर्ग या पुष्पेंद्र सिंह, लेकिन सबके ख्यालों पर विराम लग गई। भजन लाल शर्मा को एक बार के विधायक को मिली राजस्थान की कमान। पूरी खबर देखते हैं आगे इस रिपोर्ट में। मीडिया ज्यादा दौड़ रही थी, मैं तो अपने शांति से बैठा था। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपका ट्वीट हम आया उसके बाद से थोड़ा सा कहीं हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतना अवसर मिल रहा है इस जीवन में। लाखों करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और हम उनमें से एक सौभाग्यशाली हैं कि जिनको पार्टी ने अवसर दिया है जीवन में सेवा करने का अवसर। कांग्रेस सरकार में जिस तरह पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन भाजपा के सरकार में 3 मुख्यमंत्री बने और कहीं भी थोड़ा सा भी 1% भी लीकेज नहीं है। विधायक बहुत यही तो हमारे पार्टी की खूबी है और यही हमारा अनुशासन है। और आने वाले समय पर देखेंगे कि बहुत बेहतर काम राजस्थान में होने वाला है। धन्यवाद। जिस तरीके से जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप, भाई रुक जा। मान जी, जिस तरीके से महिला अपराध में राजस्थान टॉप पे है, ऐसे में महिला डिप्टी सीएम से कुछ फायदा मिलेगा? जिस तरीके से राजस्थान में महिला अपराध टॉप पे है, बिल्कुल। देखिए, संतुलन बहुत अच्छा है और सभी के सहयोग से, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम दिया जी हैं, बैरवा जी हैं और हमारे स्पीकर हैं देवनानी जी हैं, सबके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। भारतीय सपोर्टर कह रहे थे कि वसुंधरा राजे सपोर्टर कह रहे थे कि जो वो नाराज है वो लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग नई बातें मत बनाओ यार, कोई बात ही नहीं है। आप लोग खुद बना देते हो और खुद ही अपने तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ाते हो, गलत है। ठीक है। Balaknath, today is a day to read a lot of body language. Where Baba Balaknath was someone who tendered in his resignation from Alwar, sitting MP, and then fought from the Tijara constituency, won a tough battle, was hoping that he'd also find space in the trio that you see on your television screen, but not quite. Of all the MPs who tendered in their resignation, the 9 of them, if I'm not wrong, Palumi, 12 of them. It was Diya Kumari who was the most awarded this time around. She's been made the deputy, though she would have wanted to be CM. Lots of speculation was on that possibly Rajasthan, the Bharatiya Janata Party would have taken that big step and made a woman face as the chief minister. That hasn't happened. But let's cut across to our reporters, Jay Kishan as well as Devankur Vadhavan, both joining us from Ground Zero. Jay Kishan, once again, we cannot say it enough, if there are 2 men of the moment, one of them Bhajan Lal Sharma, the other one in our newsroom is Jay Kishan, because in an election which was called as the Rajasthan Russian roulette, especially after what went down in Madhya Pradesh, that anyone out of 115 could have been picked, anyone could have been picked out of them. It was Jay Kishan who late last night put his punt on Bhajan Lal Sharma. Jay Kishan, to bring you back into this conversation, I want to talk about a bit the BJP not picking a woman as the chief minister of a state. This was a moment that the BJP could have converted that and delivered on its promise where it comes down to women of the state. What made the BJP look at a deputy chief minister's chair for a Diya Kumari or any other woman and not the top job? See Preeti, I am decoding this thing as in 3 contexts. First, Eastern Rajasthan. Bharatpur is the divisional headquarter of Eastern Rajasthan. 7 Lok Sabha seats falls under Bharatpur division. So first, the message was last time BJP performed in assembly election, performed badly in the eastern pocket of Rajasthan. So this one message which BJP wants to give. Second is that Sangh has played a very important role in not only Bhajan Lal Sharma but also Diya Kumari. See, what my sources tell me is that from last 2 to 3 years, Diya Kumari was working very hard. She was contributing very hard in towards all the functions and events of Bharatiya Janata Party as well as Rashtriya Swayam Sevak Sangh. We are also joined by Divana Vidhayak. I will talk to him. Sir, RSS has played a very important role. RSS and BJP एक कॉमन कार्यकर्ता को जो है वो बनाया है, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया है. किस तरह से देखते हैं आप इसको? बैरवा जी को भी बनाया, दो मुख्यमंत्री बने हैं. आपको ध्यान है
मोदी जी हमेशा साधारण कार्यकर्ता होता है, उस पे भी और होना चाहिए कि नए को मौका मिले। और भजनलाल जी संगठन के अच्छे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के रूप में प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। कबीर सिंह जी, देखिए बात ये चल रही है कि उन्हें अनुभव नहीं है, जो उनके विरोधी ने अभी से सोशल मीडिया शुरू कर दिया कि एक अनुभवी व्यक्ति को जो है वो बना दिया है। सारे सबको अनुभव है, कैसे अनुभव नहीं है? 20 साल से संगठन का काम कर रहे हैं, दिल्ली से लगाकर प्रदेश में महामंत्री का काम किया, कैसे अनुभव नहीं है? तो आपका भी मंत्री पद के लिए आ रहा है सर? अब ये जो भी पार्टी का शपथ कब तक हो जाएगी सर? शपथ कब तक हो जाएगी? कल या परसों तक तय होगा। कल या परसों हो जाएगी, कितना होगा? ऐसा मानने में है कि